السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں ماہا اقبال۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پیناما کا ہنگامہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ ضلع کوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں سینکڑوں کارکنان کی شرکت، وزیر اعظم کے حق میں نعرے۔ ڈیرہ غازی خان میں پیپلز لیبر بیورو کے زیر اہتمام لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ ہسپتال چوک سے بے نظیر چوک تک ریلی نکالی گئی۔ گو نواز گو کے نعرے، حکمران ناکام ہو چکے، لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے پر احتجاج کی دھمکی۔ ایبٹ آباد میں لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ستائے شہریوں کے سیاحتی مقام پر ڈیرے، عوام ٹھنڈی ہواؤں اور خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہونے لگے۔ عدم توجہ اور سہولیات کے فقدان کی وجہ سے شملہ پہاڑی سیاحوں سے محروم۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر بہاڑی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی کیمپ۔ پیپلز لیبر بیورو، پیپلز یوتھ، پیپلز لائرز فورم اور دیگر کے کیمپ میں شرکت۔ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لڈن کے نواحی علاقے کوٹ غلام قادر میں واپڈا اہلکاروں کی غفلت، تاریں آپس میں ٹکرانے سے آتش زد کی۔ 3 ایکڑ گندم جل کر خاکستر، متاثرہ ذمہ دار نے واپڈا اہلکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، داد رسی کی اپیل۔ حاصل پور کے سرکاری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل تاریک ہونے کا خطرہ، محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کی خاموشی سوالیہ نشان۔ اسٹاف کی ہیڈ ماسٹر شفیق الرحمان کے خلاف دوسرے روز بھی قلم چھوڑ ہڑتال۔ ہزرو میں 6 ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر زیورات اور نقدی لے اڑے۔ ملزمان انگلینڈ پلٹ 30 سالہ نوجوان شہزاد کو اغوا کر کے لے گئے۔ اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے علاقے بھر کی ناکہ بندی کی۔ بہاڑی میں طالب علم رہنما کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر ورثاء سراپا احتجاج۔ لڈن روڈ بلاک کر دی گئی، پولیس کے خلاف نعرے، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی تحریک قتل کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر احتجاج۔ وزیر اعظم نواز شریف کی کرسی بچنے کی خوشی میں جڑاوالا میں پریس کانفرنس۔ لیگی کارکنان کرسی نہ ملنے پر جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ چیئرمین بلدیہ نے جھگڑنے والے کارکنان میں بیچ بچاؤ کروایا۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل شیخو پورہ کے میڈیکل سٹور میں آتش زد کی۔ 2 لاکھ سے زائد کی ادویات جل کر خاکستر، بروقت کارروائی، مزید نقصان نہ ہوا۔ ٹرپنگ کی وجہ سے دوسری منزل پر رکھی گئی ادویات کے سٹور میں آگ لگی۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل شیخو پورہ کے میڈیکل سٹور میں آتش زدگی، 2 لاکھ سے زائد کی ادویات جل کر خاکستر، بروقت کارروائی سے مزید نقصان نہ ہوا۔ کوٹ چھٹا میں گندم کی گہائی کے دوران 2 گروپوں میں تصادم، ایک شخص زخمی، غلام مرتضیٰ ابو بکر اور دیگر کا گندم گہائی کرنے والے مزدور پر تشدد۔ ریسکیو نے ہسپتال پہنچایا، 24 گھنٹے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری۔ اور اے سی وزیر آباد کی ہتک آمیز رویے کے خلاف پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال، تبادلے تک کام نہ کرنے کی دھمکی۔ انجمن پٹواریوں کا ہنگامی اجلاس، میڈم نور العین کی ریونیو آفیسر کے ساتھ رویے کی مذمت۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के ज़ेर-एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तारीखी फैसला आने के सिलसिले में एक इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाज़ ने की। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के ज़ेर तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के हक में तारीखी फैसला आने के सिलसिले में एक इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सदर मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी ने की। इज़हार तशक्कुर रैली में MP मलिक करमिलाई बंदयाल, मलिक रिजवान भाई एडवोकेट और चेयरमैन MC जोराबाद मलिक मोहम्मद अशरफ अवान समेत म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लीगी अहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रैली के शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर मियाँ तेरे जान निसार बेशुमार से मुतल्लिक जुमले दर्ज थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम उसको मन्नवान तस्लीम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और इस फैसले से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। ये फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन की फतह है। ये फतह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे साथ मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तशक्कुर रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों ने कहा है, पनामा केस के तारीखी फैसले ने चोर दरवाजे से वाने इक़्तिदार में दाखिल होने वाले नाकाम सियासतदानों के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने वाला अहम फैसला मुस्लिम लीग नून की शानदार फतह है और वक्त ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन का दामन करप्शन से पाक है। जबकि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी जीत का जश्न भी मनाया। कैमरामैन ली रिजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। पीपल्स लेबर ब्यूरो डेरा गाजी खान के ज़ेर-एहतमाम गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। हस्पताल चौक से बेनज़ीर चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम से लोड शेडिंग 4 माह में खत्म करने के लिए वोट हासिल किए थे, मगर आए रोज हुकूमती नुमाइंदे लोड शेडिंग खत्म करने की मुख्तलिफ तारीखें देते हैं। लोड शेडिंग की इंतहा हो चुकी है, गलत पॉलिसी और नाअहल हुक्मरान नाकाम हो चुके। अरबों रुपए वाले ओवर बिलिंग की मद में आवाम से वसूल करने के बावजूद लोड शेडिंग में इजाफा होता ही जा रहा है। अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो एहतजाज का दौरानिया बढ़ जाएगा। एबटाबाद में सूरज का पारा हाई, गर्मी और बिजली की बंदिश के सताए शहरियों ने सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी पर डेरे डालिए। अवाम ठंडी हवाओं और खूबसूरत नज़ारों से महसूस होने लगे। हुकूमती अदम तवज्जो सहूलियात की फुकदान की वजह से शिमला पहाड़ी सयाहों से महरूम है। एबटाबाद के खूबसूरत सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी पर गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने डाल लिए हैं डेरे। शिमला पहाड़ी पर चलने वाली ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे शहरियों को सुकून पहुंचाते हैं। गर्मी और बिजली के सताए शहरी फैमिलीज के हमरा यहाँ आकर कुछ लम्हात खुशी और सुकून की गुजारते हैं। कुदरती हुस्न से माला माल शिमला पहाड़ी किसी दौर में मुल्क भर के सयाहों में मकबूल थी। पाकिस्तान में बनने वाली कई फिल्मों की अक्सबंदी शिमला पहाड़ी पर की गई, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो सहूलियात के फुकदान की वजह से शिमला पहाड़ी सयाहों से महरूम हो चुकी। पहाड़ी पर नस्ब, झूले, कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुल्क भर की तरह बिहारी प्रेस क्लब के बाहर जियालों का बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया गया। गो नवाज गो के नारे रोड ब्लॉक करके मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत साबिक MNA महमूद हयात और साबिक सूबाई वजीर महमूद अख्तर घुमन, सूबाई रहनुमा सईद एजाज हुसैन ने की। एहतजाजी कैंप में पीपल्स लेबर ब्यूरो, पीपल्स यूथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अहदेदारान और जुमला कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और दौरानिये में रोज ब रोज खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिससे ताजिरों के कारोबार ठप होकर रह चुके। मरीज, बच्चे, बूढ़े और खवातीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुक्मरान बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे में नाकाम हो चुके। इस मौके पर हुक्मरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और गो नवाज गो के नारे लगाए गए।
शेखपुरा के मोहल्ला रामगढ़ के मकीनों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ टायरों को आग लगाकर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन हाय बिजली और गो नवाज गो के नारे लगाते रहे। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। राहगीरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। मुजाहिरीन के मुताबिक गैर एलानिया दबी लोड शेडिंग की वजह से सुकून गारत होकर रह चुका है। छोटे दुकानदार जिनका दारोमदार बिजली पर है वो मुकम्मल तौर पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। लेस्को इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का शेड्यूल तक जारी नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। मुजाहिरीन ने वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। लुडन के नवाही इलाके कोट गुलाम कादिर में वापडा एहलकारों की गफलत, बिजली की तारें आपस में टकराने से आतिश ज़दगी, 3 एकड़ गंदम राख का ढेर बन चुकी है। मुतासरा जमींदार ने वापडा एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया है। लुडन के नवाही इलाके में बिजली की तारें आपस में टकराने से आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया। पोल के नीचे काश्त गंदम की पक्की फसल को आग लग गई, जिससे 3 एकड़ गंदम राख का ढेर बन चुकी। मुतासर जमींदार मोहम्मद असलम ने एहतजाज करते हुए कहा कि इसकी सारे साल की जमा पूंजी राख में तब्दील हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार वापडा एहलकार हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार इस जगह से तारें आपस में टकराई, लेकिन कोई एहलकार सही करने नहीं आता। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, वरना आग मजीद नुकसान करती। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से दाद रसी की अपील की है। हासिलपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 19 फवाडफा में ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खतरा। महकमा तालीम के आला अफसरान की खामोशी पर सवालिया निशान। स्टाफ की हेडमास्टर शफीकुर रहमान के खिलाफ दूसरे रोज भी कलम छोड़ हड़ताल। टीचर्स को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां। असातिज़ा ने आला हुकाम से हेडमास्टर को तब्दील करने और क्लर्क के खिलाफ झूठी FIR खारिज करने का मुतालबा किया। असातिज़ा ने कहा कि हेडमास्टर हमें नाजायज तंग करता है। रोजाना की बुनियाद पर टाइम टेबल तब्दील किया जाता है। हर आधे घंटे बाद मीटिंग की कॉल दी जाती है। हेडमास्टर हमें गालियां भी देता है। स्कूल के बच्चों ने भी अपनी तालीम का रोना रोते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि निज़ाम तालीम दुरुस्त किया जाए। तहसील हजूरो पुलिस थाना रंगो के इलाके समेत आतिशी असलहा से लैस 6 मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 20 तोले सोना 2.5 लाख रुपए नकदी लूटने के बाद इंग्लैंड पलट 30 साला नौजवान शहजाद खान को अगवा करके ले गए। मुलजिमान शहजाद खान जो कुछ अरसा कबल ही इंग्लैंड से पाकिस्तान आया था, उसको भी यरगमाल बना लिया। वारदात की इत्तला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक जायद नवाज मरवत ने फौरी इलाका भर की नाकाबंदी कराई, जबकि DSP हजरू सर्कल फयाजुल हक और SHO थाना रंगो मालिक नवाज जाए बगुआ पर पहुंच गए। बिहारी में 2 माह कबल कत्ल होने वाले तालिबे इल्म रहनुमा मलिक जाहिद आवान के कातिल गिरफ्तार न करने पर वरस्ता का अहले इलाका की हमरा लुडन रोड को ब्लॉक करके बिहारी पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस थाना माछेवाला की हदूद में वाक़िया गाँव 577 EB के रिहायशी मलिक जाहिद आवान को 2 माह कबल इस वक्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जब वो रात के वक्त घर में सो रहा था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी और तफ्तीशी बाअसर मुलजिमान से साजबाज होकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहा है। मुजाहिरीन ने बिहारी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और टायर्स को आग लगाकर कई घंटे तक रोड ब्लॉक किया। UC चेयरमैन अख्तर नवाज भट्टी ने मीडिया को बताया कि बिहारी पुलिस की इस केस में कारकर्दगी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 माह गुजरने के बावजूद कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। और अब आपको अपडेट करें सरगोधा से, जहां पर गवालों की शहर से बाहर मुंतकली के लिए इंतजामिया का खुसूसी क्रैकडाउन किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सरगोधा से। आपको बताएं कि कॉलोनी में सहूलियात की अदम फराहमी पर गवालों ने कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया है। डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी जारी ऑपरेशन में 3 आला सतह की खुसूसी टीम्स, जिनमें पुलिस, रेवेन्यू और कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजमीन शामिल है, रहमानपुरा, मुनव्वर कॉलोनी, मकाम हयात ब्लॉक नंबर 16, गनी पार्क और दीगर इलाकों में कार्रवाई की गई है। दर्जनों भैंसे भी कब्जे में ले ली गई। गवालों की शहर भर से मुंतकली के लिए इंतजामिया का खुसूसी क्रैकडाउन किया गया।
इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कुरैशी। तारिक कुरैशी, बताइएगा कि क्रैक डाउन किन वजूहात की बिना पर किया गया? जी, आज जिली इंतजामिया ने पुलिस और सिविल डिफेंस की नफरी के हमरा 28 ब्लाक, 26 ब्लाक, मुकामे हयात, जफर कॉलोनी व दीगर इलाकों में ग्वालों के जानवर शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें ग्वालों ने कॉर्पोरेशन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। उनका मुतालबा था कि उनको ग्वाला कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। जिस पर जिली इंतजामिया और ग्वाला रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इंतजामिया का कहना था कि वो ग्वाला कॉलोनी जो कि 66 चक के करीब बनाई गई है, उसमें ग्वालों को तमाम सहूलियात मसलन बिजली, पानी, चार दीवारी व दीगर सहूलियात फराहम करेगी, जिस पर ग्वालों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। जी तारिक कुरैशी, ये भी बताइएगा कि ये ऑपरेशन किन किन इलाकों में किया जाएगा, कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा? जी, ये ऑपरेशन अब बहुत बार इन्होंने इंतजामिया ने ग्वालों को नोटिस दिए, मगर उन्होंने उस पर कोई काम नहीं धरे। ये ऑपरेशन शहर भर में जारी है और पूरे शहर में किया जाएगा। शहर जहाँ जहाँ भी ग्वालों के वो अपना भैंसों के मरकज हैं, उनको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, और जब तक ये एक भी भैंस सरगोदा शहर में रहेगी वो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे सरगोधा से, जहां पर गवालों की शहर से बाहर मुंतकली के लिए इंतजामिया का खुसूसी क्रैक डाउन किया गया है। कॉलोनी में सहूलियात की अदम फराहमी पर गवालों ने कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया है। रहमानपुरा, मुनव्वर कॉलोनी, मकाम हयात ब्लॉक नंबर 16, गनी पार्क और दीगर इलाकों में कार्रवाई हुई है। दर्जनों भैंसों को कब्जे में ले लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी जारी ऑपरेशन में 3 आला सतह की खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं, जिनमें पुलिस, रेवेन्यू और कॉर्पोरेशन अफसरान और मुलाजिमीन शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि हक और सच की फतह हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ सुरखरू हुए। इन ख्यालात का इजहार मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने कारकुनान के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन ने इल्जाम तराशी को तरीका सियासत समझ रखा है। अकील नजम हाशमी ने मजीद कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि अवाम की खिदमत और मुल्क और कौम की तरक्की का जज्बा रखने वालों का साथ खुद खुदा की जात देती है। 4.5 साल से हमारे कायद मियां नवाज शरीफ पर सियासी मुखालिफिन कीचड़ उछाल रहे थे। पाकिस्तान के अवाम जानते थे कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखते हैं। मुल्क और कौम की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वालों ने मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सियासी मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ी। इस मौके पर एक बड़ी रैली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू होकर प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली में मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार के नारे लगते रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ की कुर्सी से बचने की खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लीगी कारकुनान कुर्सी न मिलने पर झगड़ पड़े और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। इस दौरान चेयरमैन बल्दिया राय मुस्तफा बाबर और दीगर ने झगड़ा करने वाले कारकुनान में बीच बचाव करवाया। जड़ावाला में मुस्लिम लीगी रहनुमा सनाउल्लाह बाजवा के डेरा पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी कारकुनान की लड़ाई की नजर होती गई, लेकिन इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि लीगी रहनुमाओं ने कुछ कहे बगैर दुआ खैर करवा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करवा डाली और कारकुनान में मिठाइयां तकसीम करके उन्हें चलता किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा के मेडिसिन स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के नतीजे में 2 लाख से ज़ायद मालियत की अद्वियात जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि लाखों रुपए मालियत की अद्वियात को बर वक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। ड्रग कॉम्प्लेक्स में बार बार ट्रिपिंग की वजह से दूसरी मंजिल पर रखी गई अद्वियात के स्टोर में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ऑफिसर, फायर फाइटर्स और फायर ब्रिगेड के अमले ने निस्फ घंटे की अनथक मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा के मुताबिक अभी कब अज वक्त है कि मजमूई नुकसान के मुतालिक हम मीडिया को बता सकें कि कितनी मालियत की अद्वियात जलकर खाकिस्तर हुई। निजी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जामपुर के मुस्तहिक तालिबात में तोहफे तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे वकार अहमद। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जामपुर में मकामी समाजी तंजीम की जानिब से मुस्तहिक तालबात में तोहफे तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बोर्ड टेवटा जिला राजनपुर के सदर सरदार मोहम्मद सईद खान गिशकोरी थे। इस मौका पर मोहम्मद अयूब खान नासिर एडवोकेट, डॉक्टर कैप्टन अब्दुल करीम, मिसिज असमत दुरानी, राना मोहम्मद सईद, सईदुर रहमान शेरवानी और आफ्ताब नवाज मस्तोई के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए
मुकर्रिरीन ने कहा कि जो लोग दूसरों की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर देते हैं वो अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसानियत की खिदमत सबसे अफजल तरीन इबादत है। उन्होंने कहा कि रज़ाकारियत पैगम्बरी सेवा है। इंसानी भलाई के लिए इदारा क़ुव्वत समेत जितने इदारे भी काम कर रहे हैं इनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। आखिर में मुस्तहिक तालबात में तहाइफ तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ वकार अहमद, कोहिनूर न्यूज़, जामपुर। दहशतगर्दी के खिलाफ लिविस फोर्स की कुर्बानियां मिसाली हैं। लिविस बलोचिस्तान की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। उन्होंने ख्याल किया कि कैप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद जमाली ने कोहलू में फेडरल लिविस फोर्स के 73 कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लिविस फोर्स ने जदीद सहूलियात की बिना पर मिसाली कारकर्दगी पेश की है। आज तरबियत मुकम्मल करने वाले लिविस जवानों से उम्मीद है कि वो मुल्क के दिफा और कौम की बका के लिए अपनी खिदमत जिम्मेदारी से पूरी करेंगे। जवानों को बेहतरीन तरबियत का सहरा डिप्टी कमिश्नर कोहलू कर्नल फैसल फारूक और रिसालदार शेर मोहम्मद के सर जाता है, जिन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली। तकरीब के आखिर में लिविस कैडेट्स ने दहशतगर्दों से निमटने और सर्च ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में मीर इस्माइल मरी, मीर नसीबुल्लाह मरी समेत दीगर कबायली रहनुमा और ज़िले अफसरान और शहरी ने शिरकत की। कोटशुट्टा में गद्दम कहाई के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, डंडों के वार से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। 24 घंटे बाद मजरूब को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अपडेट करें आपको कोटशुट्टा से, जहां पर गौसवात में थ्रेशर पर गंदम कहाई के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। गुलाम मुर्तजा, अबू बकर, गुलाम मुस्तफा, मुमताज और अमजद ने डंडों और सरिया के वार से गंदम कहाई करने वाले मजदूर अब्दुल रज्जाक को जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1122 की मदद से मजरूब को कोटशुट्टा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के डॉक्टर गायब थे, मरीज तड़पता रहा। डॉक्टर समेत पूरा अमला गायब था। बिलाखिर अमला 24 घंटे बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर चुका। कार्रवाई शुरू हुई। मजरूब ने अपने वालिद के हमरा एहतजाज करते हुए अस्पताल अमला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर नूरुल ऐन के हतक अमेज रवैये के खिलाफ पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल, तबादले तक काम न करने की धमकी। तहसील वजीराबाद में अंजुमन पटवारियों का हंगामी इजलास ज़ेर सदारत हाफिज शब्बीर अहमद चीमा मुनक्किद हुआ। इजलास में डिवीजन के सदर अंजुमन पटवारियां शाहिद अंसर गुराया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब चहल गर्द और नबी अहमद चीमा और इसके अलावा दीगर शख्सियों ने शिरकत की। इस मौके पर अहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी यूनियन जब से वजूद में आई है हमने कभी भी बिला जवाज बेमकसद हड़ताल नहीं की। शहर कायद 5 दिन से रेंजर्स की सिक्योरिटी से महरूम है। पुलिस हुक्काम इस सिक्योरिटी गैप में पहले से ज्यादा चुस्त दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की खुशकिस्मती है कि इस दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया रोनुमा नहीं हुआ। ताहम शहर भर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बज़ाहिर बेलगाम है। गैंगस्टर्स की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कराची की सियासी, समाजी, मजहबी और ताजी बिरादरी हुकूमत सिंध और वफाक से मुतालबा कर रही है कि कराची में पायदार अमन के क़याम के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएं। पुलिस स्टेशन में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रिपोर्टिंग बढ़ चुकी है। शहरी खुद को इस हवाले से गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। पुलिस के आला अफसरान स्ट्रीट क्राइम के जोर पकड़ने की तरदीद कर रहे हैं। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जस्ट एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।